مجھے ایسا لگتا ہے اور شاید صحیح بھی ہے کہ پہلے سے تھوڑا ہم لوگ کا اسٹینڈرڈ بڑھا ہے. ہندی بھی اچھا بولنے لگے ہیں اور انگریزی بھی اچھا بولنے لگے ہیں. اردو تو خیر جیسے ہے ویسے ہے. اور یہ ثانیہ اردو یونیورسٹی میں یا اردو والوں کے ساتھ یہ دقت ہمیشہ رہی. جس زبان میں ہے وہ اس میں کمی رہتی ہے یہ ہمیشہ سے اور انسانی فطرت. دو تین چیز بول کے میں گروپ کی کمی کو ختم کر کے پروگرام ختم کر دوں گا. جو میرا اپنا تجزیہ ہے 15 اگست پہ بھی 2-3 منٹ کیونکہ کالج میں ہوں تو بولنا ہے کہ انسان جو ہے دیکھیے شکایت تو بہت تھی ہندوستان سے, ہندوستان کی گورنمنٹ سے, آزادی میں جو ہم لوگوں نے خدمت دی یا جو قربانیاں دیں اس سے. لیکن 2-3 چیز بہت جائز ہے. ایک چیز جائز یہ ہے کہ انسان بائی نیچر سیلفش ہوتا ہے. انسان بائی نیچر سیلفش ہوتا ہے. سیلفش کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا, اور وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا ہے. اگر ڈرتا تو ظاہر سی بات ہے دہشت گرد بننے کی ضرورت نہیں تھی, 5 وقت نماز پڑھنے کی ضرورت تھی. تو وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. جو انسان اللہ سے نہ ڈرے وہ دوسروں سے نہیں ڈر سکتا. ماں باپ جو دنیا میں اس کو لایا اس سے بھی نہیں ڈرتا ہے بلکہ اس کو سزا بھی دیتا ہے. ایسے حالت میں یہ کہنا کہ ملک سے ڈرے گا, ملک کا ہو کے رہے گا, یہ بہت کنٹراڈکٹری ورڈ ہے. بہرحال جو کیپیسٹی ہے اس میں یقیناً سبھی لوگوں نے محنت کیا, ہم لوگوں نے بھی محنت کیا اور ہم لوگوں نے بھی ہم کا احساس کیا. لیکن مائنورٹی کمیونٹی کی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اس میں بھی فیلنگ ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے. جو مائنورٹی میں ہوتا ہے اس میں بھی فیلنگ ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے اور یہ ہوگی. شکایت ہر دور میں رہا. 1907 میں بھی شکایت کی وجہ سے ہی مسلم لیگ کا قیام کیا گیا تھا 6 میں. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت وی آر سیٹسفائڈ کہ ہاں سب اچھا چل رہا ہے, ایسا نہیں تھا. تاریخ میں آپ دیکھیں گے جس دور میں آپ جائیں گے شکایت رہی ہے. انسان کے نیچر میں شکایت زیادہ ہے اور تعریف کم ہے. انسان کے نیچر میں سیٹسفیکشن کم ہے, ڈس سیٹسفیکشن زیادہ ہے. انسان کی نظر میں دوسروں کی کمی بہت ہے, اپنی کمی بہت کم ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. بٹ کچھ اسٹیٹسٹکس ہے جو پروف کرتی ہے کہ کچھ کام ہوا ہے. جیسے آزادی کے وقت صرف 16%, 14% لوگ لٹریٹ تھے. ابھی لگ بھگ 80% کے آس پاس ہیں. آزادی کے وقت 1951 میں جب سینسس ہوا تو 27 یونیورسٹی تھی, 27 یونیورسٹی. ابھی لگ بھگ 800 یونیورسٹیز. ابھی جبکہ نیشنل نالج کمیشن نے کہا کہ کم سے کم 1500 یونیورسٹی ہونی چاہیے. آزادی کے وقت اتنے سہولت نہیں تھے. ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں تھا, ووکیشنل ایجوکیشن نہیں تھا, پروفیشنل ایجوکیشن کی کمی تھی. لیکن آج کے وقت میں کافی ترقیاں ہوئی ہے. تھوڑی جو دقت ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہم لوگ کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا تعلیمی ادارے کے حیثیت سے, طالب علم کی حیثیت سے. اس کو ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. شکایت آپ جب لہریا سرائے اسٹیشن سے میں لگ بھگ ہر ہفتے گزرتا ہوں, اس پہ آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ انسان واحد ایک ایسا یہ ہے جو شکایت کرتا ہوا ہی مرتا ہے. جو شکایت کرتا ہوا ہی مرتا ہے. اور دس از ون آف دا ایزی وے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. تو ہم دوسروں تک جائیں بہت مشکل ہے. کتنے تک جائیں گے. ایز اے اسٹوڈنٹ 25 سال میں ہم نے کیا کیا اس کو دیکھیں. آنے والے 25 سال میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو طے کر لیجیے اور اس کے حساب سے کام کیجیے. اس 2 سال میں یہاں کیا کر سکتے ہیں اس کو دیکھ لیجیے, اس کے حساب سے کام کیجیے. جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس اتنا فرصت نہیں ملے گا کہ آپ دوسروں کی شکایت کریں.
यकीनन मुल्क के हालात हमेशा खराब रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा खराब है। डेमोक्रेसी एक वर्ड है जो इंडिया में पॉलिटिकल ज़्यादा यूज होता है, अदरवाइज इसका सोशल एस्पेक्ट जो है वो पॉलिटिकल से बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, इट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डिसीजंस ऑफ द कंट्री। मुल्क के जो फैसले हैं उसमें आवाम की नुमाइंदगी है, आवाम के फैसले ही मुल्क के फैसले होते हैं। ये है, हम लोगों ने इसको महदूद करके पॉलिटिकल वे में ज़्यादा डिफाइन किया है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी दिक्कतें पेश आती है, खासकर मौजूदा वक्त में आ रही है। ऐसे हालात में तालीम याफ्ता होने के नाते हमें एहसास होता है कि क्या सही है क्या गलत है। खासकर मौजूदा वक्त में जो मुल्क के हालात हैं उसमें यकीनन डिससेटिस्फैक्शन है पर्टिकुलर ग्रुप में, और बहुत सी जगह ऐसा है जहां उसकी वजह आम है, और बहुत सी जगह ऐसा है जहां लगता है कि वे प्लान वे में स्टेट स्पॉन्सर्ड है। वो एक खतरनाक पहलू है, अफसोसनाक पहलू है, और हमें कहीं ना कहीं खामोश बन के रहना पड़ता है, जो कि अफसोसनाक है। कहते हैं ना कि न मकतूल से है वास्ता न कातिल से है रिश्ता, हम तो फकत लाश उठाने के लिए हैं। मौजूदा वक्त में कुछ ऐसे हालात हैं जहां लोग, अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग जो डिसाइसिव हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो लोग भी इस गिरफ्त में आ गए हैं कि वो गलत को सही साबित करते हैं। वो अफसोस की बात है, उनका एटीट्यूड छोटे गेन के लिए पॉलिटिकल होता है, सेल्फिश होता है और बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ये एक अफसोसनाक पहलू है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की जो सबसे अहम चीज़ है वो उसके पास जो है वो पैसेंस होता है और वक्त को समझने की सलाहियत होती है। आप तारीख देखें तो दुनिया के जितने मसाइल हैं, थे, हैं या रहेंगे, इन सभी मसलों का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है, दूसरा कोई हल नहीं है। इंसान की सिविलाइजेशन से लेके अब तक जितना चीज़ भी हुआ, उन सभी में जो भी मसला आया उसका हल तालीम, दूसरा हल कुछ नहीं। और हम लोग, अल्लाह का फजल है कि हम लोग तालीमी इदारे से मुंसलिक हैं, तो जो भी मसला है उसका हल हमें तालीमी पस मंज़र में ढूंढने की कोशिश करनी होगी, और यही हम कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो दूसरा हम काम नहीं कर सकते हैं। दूसरे लाइन में आप फेलियर हो जाइएगा, दूसरे लाइन में आप मसले का हल नहीं ढूंढ पाएंगे, बल्कि खुद मसला बन जाइएगा, दूसरों के लिए भी अपने लिए। तो तकाज़ा है वक्त का कि आप अपने रुझान के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ये जानते हुए कि मसले का हल किसी में है, तालीम में है, तो तालीम को फौकियत दीजिए, तालीम के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश कीजिए। और मुझे ये उम्मीद है कि हम लोग, पहले ऐसा कहा जाता था कि एजुकेशन इज आवर लॉस्ट प्रॉपर्टी, इस्लाम में ये कहा जाता था कि एजुकेशन इज आवर लॉस्ट प्रॉपर्टी, वेयर एवर यू फाइंड इट हैव इट, जहाँ आपको मिल जाए वहाँ रख लीजिए। बट नाउ इन डेज आई पर्सनली रियलाइज, जब मैं एडमिशन ले रहा था तो पॉलिटेक्निक के एडमिशन में 3-3:30 बजे रात में कम से कम 100 आदमी घास पे मैदान में लेटा हुआ था, सोया हुआ था। मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ सांप काट लेगा? तो कहा कि नहीं सर, सांप नहीं काटेगा। हमने कहा क्यों नहीं काटेगा? तो कहा कि हम लोग बहुत लोग हैं, हम लोग, देखिए यूनिटी में सांप का भी डर नहीं है, जिसको वो सवाल नहीं है काट लेगा। तो मुझे लगा कि अगर ये लोग वाकई इसी यूनिटी से खड़े हो जाएं तो दुनिया में कोई काट सकता है? कोई नहीं काट सकता। दूसरा, वो लोग लेटे हुए थे एडमिशन लेने के लिए पॉलिटेक्निक में, किस लिए? एडमिशन लेने के लिए।
उस वक्त मुझे एहसास हुआ, 3:30-4 बज रहा था, मुझे एहसास हुआ कि अब ये कम्युनिटी तालीम हासिल कर लेगी। जब ये रात में जग के लेट सकती है तो इंशाअल्लाह ताला ये तालीम हासिल कर लेगी। तो मुझे पर्सनली मेरी ज़्यादा औकात नहीं है, ना ज़्यादा दिमाग है, लेकिन जो मैं सोचता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, अब हम लोग तालीम की तरफ आ रहे हैं। प्लस 1-1:30 बजे रात में कई लड़कियां यहाँ मुझे कही कि सर कोई जगह लगा के मेरा एडमिशन कर दीजिए। वहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं, वहाँ पे कहीं, जहाँ मुझे पाई वहाँ आके चुरा चुरा के कही सर एडमिशन कर दीजिए प्लीज़, कोई जुगाड़ लगाइए, आप बहुत काबिल हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। मैं कर तो नहीं सका एडमिशन, लेकिन मुझे ये जरूर एहसास हुआ कि अब इंशाअल्लाह ताला हम लोग वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। अब अल्लाह ने चाहा तो हम लोगों में ये जो तालीम का एक ज़हन डेवलप हो रहा है, उसके ज़रिए यकीनन अब हम लोग इंशाअल्लाह, चूँकि ये लड़कियां हैं, ये अगर जग गई, मेरी माँ अकेले 5 भाई बहन को बीए पास कराए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि 2-2 वक्त नहीं खा के बीए पास कराए। आई बात सुनिए, 5 भाई बहन को, हमारा 5 भाई बहन एमए पास है, कागज पे समझे, एमए पास है, और 20 क्रेडिट गोज टू ओनली ए लेडी, नन अदर देन। मेरे वालिद को ये नहीं पता था कि मैट्रिक का इम्तहान हम कब पास किया। कहे कि तो मैट्रिक का इम्तहान नहीं दिए, हम कहा कि हम आइए पास कहे कि ओ आइए कर गया होगा ना। बट माई मदर नो बेटर देन अदर्स, उसने जैसे भी हो हम 5 भाई बहन को करा दिया। और आज के डेट में भी तुम यकीन जानो कि अभी पॉलिटेक्निक का एडमिशन हो रहा था, तो मेरी माँ वो कहते थे कि वो कभी भर दिए, वो कभी भर दिए, वो कभी भर दिए, वो कभी भर दिए, समझे। तो एक लेडी की वजह से इतना आदमी नौकरी में आ सकता है। तो ये लड़कियां जो खुद इतनी मेहनत से बीएड कर रही हैं, इसके ऊपर अब उम्मीद की जा सकती है अब हम लोग का अच्छा वक्त आ सकता है इंशाअल्लाह। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कॉलेज को यूज़ कीजिए, कॉलेज को यूज़ कीजिए, अदरवाइज हम लोग साजिश का शिकार होते रहेंगे। जितना मैं अपने लाइफ में बादलों को देखा है, आज सबसे ज़्यादा हसरत से देखता था कि काश वो साइड हो ताकि धूप कम हो। और शेर है कि 2 बादलों के बीच साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। तो ये ऐसे हालात 2-3 पार्टी मिल जाती है, नुकसान मुस्लिम से होता है। उसकी वजह ये है कि दे आर द सॉफ्ट टारगेट एंड इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। अगर उनमें एजुकेशन आ जाएगा तो यकीन जानिए नोबडी कैन टारगेट किसी भी क्लास को। तो ये सही वक्त है, ये एक बच्चे बीएड के नहीं है, एक बच्चा एमएड का नहीं है, ये एक सोसाइटी है। उस निस्बत से हम तालीम देने की कोशिश करते हैं, उस निस्बत से धूप में भी इस उम्मीद से कि ज़्यादा बच्चे आएंगे, बख्तियार साहब बैठाने का फैसला ले लिए। ये एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो इस इमोशनल अटैचमेंट को आप लोग सिर्फ बीए की डिग्री के लिए ना पढ़ें, प्लीज़, एमएड की डिग्री के लिए ना पढ़ें, अदरवाइज पूरा मकसद फॉल्ट कर जाएगा। कोई भी कम्युनिटी किसी को पढ़ाना नहीं चाहती है। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी तालीम नाफिज किया तो उसको कहा कि ये हिंदुस्तानियों के लिए होगा या नहीं होगा, तो कहा कि नहीं होगा। तो जो लोग कह रहे थे कि नहीं होगा, उसने बहुत अच्छा लॉजिक दिया। उसने कहा कि हमने अमेरिकन को तालीम देना शुरू किया, नतीजा है कि अमेरिकन से हम हार गए। अब हम हिंदुस्तानियों को तालीम देना शुरू करेंगे तो आज न कल हम हिंदुस्तान से भी हार जाएंगे। ये 1823 में कहा था, 1823 में कहा था। पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी होती थी उस वक्त में कलकत्ता में, उसकी मीटिंग में कहा था कि इफ वी बिगिन टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द इंडियंस नेचुरली विल बी डिफीटेड बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच कैन चेंज एवरीथिंग। और हुआ, अमेरिका से भी हारा,
1783 में और 1947 में इंडिया से भी हरा कि नहीं हरा। तो ये कौम भी अगर किसी को हराना चाहती है तो इसके पास कोई गुलेत नहीं है, ये रोड नहीं है, इसके पास यही है। मौलाना आजाद ने जब कहा था, कौन कह रहा था उस पे जामा मस्जिद पे, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे पास कोई ऐसा जादू का नुस्खा नहीं है जो किसी मुसलमान को मैं दे सकूं, सिवाय उसके जो 1400 साल पहले पैगंबर ने बताया था। और ये फैक्ट है। तो आप लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कीजिए। एमएड का यूज कीजिएगा, आप जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। क्योंकि जो लोग यहाँ आए हैं उनको डिग्री मिल ही जाती है, मिल जाएगी। जाहिल जब निकल के जाएंगे तो मेरे लिए कलंक होंगे। अब हम लोग का नाम काफी बड़ा हो गया। तो पूछता है कहाँ से आया, तो मानू से, समझता है तेज होगा, पढ़ा होगा। और वो अगर लेलपना से डिग्री लेके चला जाएगा तो हम लोग को बड़ी मेहनत करनी होगी उसका डिग्री वापस लाने के लिए, समझे। तो कोशिश कीजिए कि टेक इट एज ए मिशन, नॉट टेक इट एज ए कोर्स ऑफ बीएड एंड एमएड। दिस इज जस्ट ए मिशन टैग। और ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। फिल्म देखे ना, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, एमएड भी ना मिलेगा दोबारा, ऐसा समझे, बीएडओ नहीं मिलेगा दोबारा। अभी मैं एक कॉलेज में था, एक प्रोफेसर ने कहा कि फैज सर मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने साथी का। मैंने कहा कि किस साथी का, मैं तो हमसे भी जान पहचान है। मैंने कहा किसका सर, तो कहे कि मुझे फांसी, उस आदमी को फांसी की सजा हो गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, मतलब रद्द कर दिया। तो जिस कोठरी में था उसमें एक मुस्लिम भी था जिसको फांसी की सजा थी, और जिसको फांसी की सजा है उसने उस मुस्लिम से उर्दू सीख लिया, उसने उस मुस्लिम से उर्दू सीख लिया। अविनाश आविश कुमार नाम है, साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर में पोस्टेड। बहुत फख्र से कह रहे थे। मैंने कहा कि वो मुस्लिम ने संस्कृत सीखा या नहीं सीखा, तो कहा कि नहीं। क्या कहा, नहीं। देखिए ये मेंटलिटी है। इसने उसको उर्दू सिखाया है, वो भी चाहते तो संस्कृत सीख सकते थे, तो गिव एंड टेक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीखना बहुत टफ है और हम लोग इमोशनली बहुत अटैच है। मेहनत के तराजू पे अपना पल्ला बहुत नीचे है। इमोशनली हमें चाहिए पूरी दुनिया में हुकूमत हो जाएगा, मेहनत का अगर कहिए तो एक घंटा ना पड़ता है। एक चाय की दुकान खोल दीजिए, 10 घंटा तकलीफ करेगा। और काबिलियत नहीं है, बहुत से काबिलियत, लेकिन स्टेज नहीं है, क्योंकि उस काबिलियत को उसने सिस्टमेटिक नहीं किया है। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, we will celebrate 15th August, 26th January, not every year we will celebrate, but this is the opportunity। हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर कॉलेज की कमी आप निकालिएगा तो वो कमी निकल जाएगा, हम भी चुप हो जाएंगे। लेकिन आप जाइएगा जाके, सिवाय डिग्री के आपके पास। मेरा एक साथी था,